Hi everyone. So it's been day 2 of the Russian invasion in Ukraine. And if you're wondering how this day has been, it's been bad. Innocent civilians are dying, the West only indulging in some bit of lip service, and that's about it. Putin is hardly bothered. There are protests happening in Russia and other parts of the world against this aggression. And in the middle of all this, what if I tell you that there is some bit of hope? कहीं से एक छोटी सी उम्मीद की किरण आ रही है. Is there a chance that this war can be stopped? क्या ये युद्ध यहीं पर रुक सकता है? बिल्कुल. कौन रोकेगा ये युद्ध? That is going to be the next question. That is what we'll keep our focus on, because my job here and my promise to you is to help you get the news that you should get and help you filter out the news that you can ignore. तो हम बात कर रहे हैं कि कौन ये युद्ध रोक सकता है, कौन व्यक्ति है या कौन सा देश है और कैसे रोकेगा. इससे पहले हम इस बात को आगे ले जाएं, मैं आपको एक छोटा सा रिएक्शन सुनाना चाहती हूं. इनफैक्ट ये एक रिएक्शन है जो यूक्रेनियन ऑनवॉय की तरफ से आया कल, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपील करी कि वो पुतिन साहब से बात करें ताकि ये युद्ध रुक सके. लिसन इट. One of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji will try to influence somehow Putin. We shall be also most grateful to the Modi ji for some words of support and maybe practical assistance to Ukraine. So after this appeal was made, the two sides spoke. Prime Minister Modi spoke to Vladimir Putin. Now what did India say? India stressed on 3 Ds: de-escalation, diplomacy and dialogue. यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो सीधा सीधा भारत ने मॉस्को को यह कहा कि जिस तरह की सैन्य कार्रवाई इस समय यूक्रेन में हो रही है उसको रोका जाए. डिप्लोमेसी और डायलॉग यानी बातचीत से उस पूरी सिचुएशन का हल निकाला जाए. और प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात उन स्टूडेंट्स की भी करी जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं. दे हैव नॉट बीन एबल टू कम बैक होम. सो इस पूरी बातचीत का ये असर है कि हमने ये देखा है कि दिन में MEA informed us that there will be now multiple teams formed to ensure that these students are brought back home safely and in time. तो देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरह इस समय जियोपॉलिटिक्स घूम रहा है, जिस समय हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट धीरे धीरे अपना एक जो सुपर पावर का टैग है उसको लूज करता जा रहा है, स्पेशली द यूएस. नेटो के अपने रेलेवेंस को लेकर, यूएन के अपने रेलेवेंस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में क्या भारत इस पूरे युद्ध को रोक सकता है? Can India really diffuse this crisis right now? And also, can India act as an interlocutor in this entire situation? Because ये मत भूलिएगा कि जो इस समय भारत के विदेश मंत्री है ना, डॉक्टर S जयशंकर, he is a career diplomat. So we shouldn't be surprised if India already is working towards it. Because for far too long, remember, there are certain powers who want to call themselves superpower. But are they concerned about what's happening in Russia, what's happening elsewhere, or they are only and only concerned about themselves? आपने सही पकड़ा, मैं यूएस की ही बात कर रही हूं, अमेरिका की. अब इस समय देखिए क्यों अमेरिका को लेकर या अमेरिका पर इतने सवाल उठ रहे हैं. सबको यह पता था बीते कुछ समय से कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, that Putin could invade Ukraine. So what did the US do? What did NATO do? Why were they sitting and watching for the situation to go out of control? And even now जब हमने ये देखा है कि Russia has invaded Ukraine, apart from some lip service and some sanctions,
What has the US done? अब यूएस क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? इस समय देखिए यूएस की अपनी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर इन्फ्लेशन को लेकर बहुत चिंता है और एनर्जी क्राइसिस अगर इस पूरे वॉर से होता है, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात करी थी, उससे इस इन्फ्लेशन में और इंक्रीज आ जाएगा और यूएस में और दिक्कत हो सकती है इसको लेकर, क्योंकि बहुत डिपेंडेंसी है इस पूरे एनर्जी को लेकर यूएस में। दूसरा, वहां पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना इस समय, उसमें भी बाइडेन की स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहां पर हमने कंटिन्यूस ये जो डिवाइड देखा है बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन, वो अब और वाइड हो गया है। जो लोकल अमेरिकन लोग हैं, जो वोटर्स हैं वहां पर, वो ही अब बार बार सरकार से ये पूछ रहे हैं कि क्यों आप हमारा यानी टैक्स पेयर का पैसा ले जाकर दूसरी कंट्रीज में वॉर करते हो और उसमें क्या मिलता है आपको। वियतनाम वॉर में क्या हुआ ये सब जानते हैं। उसके बाद आपको याद होगा भी हाल ही में अफगानिस्तान से किस तरह यूएस भाग गया, एंड तब बाइडेन हैड सेड दैट वी वर नॉट हियर फॉर नेशन बिल्डिंग। सो व्हाट वाज अमेरिका डूइंग देयर फॉर ऑल दिस वाइल? व्हाट डिड दे डू? डिड दे सरेंडर टू द तालिबान? क्योंकि वही तालिबान जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने उसी तालिबान से डील कर दी। So this is the reason why, there are a lot of questions being raised right now on the US itself. And US ने ये सीधा बोल भी दिया है कि it is not sending its troops down to Ukraine to fight. But वो ये कहता है कि we will support you in this fight. अब बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि फिर आप क्या करोगे, कैसे फाइट करोगे, how will you stop Putin? तो ये तो बात हो गई सुपर पावर्स की। उसके बाद भी जो तमाम यूरोपियन कंट्रीज है ना इस समय, वो सब अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, सब अपने डोमेस्टिक कंसर्न्स को लेकर परेशान हैं। उन सब की इस समय प्रायोरिटी नंबर 1 है कि अगर ये क्राइसिस लंबा चलता है तो जो एनर्जी क्राइसिस को लेकर बात हो रही है उससे वो लोग कितना अफेक्ट होंगे। तो ये उनकी कंसर्न हो गई। अब दूसरे साइड बचा चाइना। चाइना को लेकर देखिए ये सवाल और एक ये सिचुएशन सब लोग जानते हैं दैट चाइना हैज आल्सो बीन ऑन द प्राउल फॉर एक्सपेंशनिज्म। चाइना लगातार ये चाहता है कि वो विस्तारवाद करे और उसके इस विस्तारवाद को लेकर भी नॉट जस्ट द यूएस बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन वेरी कंसर्न्ड, और ये कंसर्न इंडिया का भी है। लगातार हमने ये देखा है कि किस तरह China has been trying to encroach our territory. It has been trying to say कि जो इंडियन टेरिटरी है वो उनकी है। इसको लेकर भी विवाद होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी हम आए दिन सुनते रहते हैं कि किस तरह विवाद रहता है। अब चाइना के शी जिनपिंग ने भी आज व्लादिमीर पुतिन से बात करी है और उन्होंने उनको बोला है कि नेगोशिएशन से यानी बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। अब चाइना को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगी। अब क्या ये कहा जाता है दैट रशिया एंड चाइना राइट नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स? आर दे रियली दैट क्लोज? Because somewhere, there is this sense that even Russia's perception of China now has begun to change. Because there is this growing asymmetry in the ties between the two countries. Russia's economic dependence is the highest ever right now on China. China is also increasingly gaining an upper hand over Russia, and especially when it comes to what's been happening in Central Asia, because China has made tremendous amount of investments, particularly in the Central Asian region, and this is something that has got Russia worried. तो रशिया खुद भी ये चाहता है कि कहीं ना कहीं चाइना पर एक चेक रखा जाए। अब ये चेक कैसे रखा जा सकता है? भारत के बिना ये संभव नहीं है और पूरी दुनिया ये जानती है कि आप चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन भारत पर कर सकते हैं। और भारत के एडवांटेज में क्या आता है? देखिए, इंडिया हैज लार्जली बीन वेरी न्यूट्रल। जब से नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात होती थी, यानी हम किसी एक साइड के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम साइड ए या साइड बी नहीं लेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो भी इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय विवाद है वो बातचीत से सुलझाया जाए, थ्रू डायलॉग, थ्रू डिप्लोमेसी। और यही स्टैंड आज दोबारा इंडिया ने लिया है।
vis-a-vis what is happening with Russia and with Ukraine. अब अगर हम रशिया और इंडिया की बातचीत करते हैं about their relationship, it is very strong. I just want to share some figures with you that will help you understand this story a little better. Now, Moscow has been a reliable partner and a reliable friend for New Delhi, especially with what happened in the 71 war situation. And New Delhi knows this. They value that relationship. Bilateral trade between the two today stands at $8.1 billion. This is a figure of 2017. Both these countries have collaborated on different political platforms, whether that is the UN, whether that is the G20, whether that is the BRICS or even the SCO. और ये भी कहा जाता है कि SCO में भारत को पोजीशन या एक स्थान दिलाने वाला रशिया ही था। और रशिया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इट वांटेड टू कीप अ चेक ऑन चाइना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। एक एस्टिमेट के हिसाब से रशिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 68% ऑफ इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर। और आपको याद होगा हमने कल ही बात करी थी अबाउट द S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसकी डील 2018 में भारत और रशिया के बीच होती है। अब इसको लेकर भी द US was really worried, the US was peeved. But in spite of that objection, India went ahead and it struck this deal. Clearly again cementing this long-standing relationship between India and Russia. तो वापस आते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अब देखिए इस समय पर जब भारत के ऊपर तो ये दबाव है कि आप एक साइड चुनिए, लेकिन भारत ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि किसी भी विवाद का जो सल्यूशन है वो वॉर या अग्रेशन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डिप्लोमेसी और डायलॉग के टेबल पर ही आना होगा, यानी कि तमाम साइड्स को बातचीत करनी पड़ेगी और उसी बातचीत से किसी ना किसी तरह का हल निकलना चाहिए। दिस इज व्हाट इंडिया हैज बीन लार्जली सेइंग। अब देखिए एक ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है दैट इंडिया टुडे कैन बी यूजिंग दिस एंटायर सिचुएशन टू इट्स एडवांटेज विज़-अ-वी ऑल्सो चाइना। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको समझाया कि इंडिया और रशिया के बीच में इस समय एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पुराना दोस्ती का नाता है जो सालों साल से चल रहा है, विच इज टाइम टेस्टेड। एंड दिस इज अगेन अ रीजन वाई टुडे हमने ये देखा है कि इंडिया ने एक साइड नहीं लिया है इस विवाद में। इंडिया ये कहता है कि आप बातचीत से इसको सुलझाइए। दूसरे साइड चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है। चाइना लगातार एक्सपेंशनिज्म यानी विस्तारवाद करता है और इस विस्तारवाद को आपको लेकर याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार बीजिंग को चेताया है एंड वर्ल्ड को भी ये लार्जर मैसेज दिया है कि ऐसी तमाम जो कंट्रीज हैं जिनको लगता है कि वो विस्तारवाद या एक्सपेंशनिज्म कर सकती हैं वो सावधान हो जाए। सो इंडिया की कंसर्न विथ चाइना जो है वो भी रशिया जानता है एंड रशिया ऑल्सो नीड्स इंडिया to keep a check on China and also to keep a check on the US. So, that is how this entire circle of geopolitics right now is moving. And तभी मैंने आपको ये बात, सोचा कि आपसे ये शेयर करती हूँ. And this I believe is that glimmer of hope. क्योंकि अगर भारत आज एक बड़ा रोल प्ले करता है और हो भी सकता है कि भारत ऑलरेडी वो रोल प्ले करने लग गया हो कि ये क्राइसिस डिफ्यूज हो सकता है। क्योंकि अब देखिए ये बात तो अब साफ है कि जो एक सुपर पावर का टैग यूएस मानता है कि उसके साथ अभी भी है, उसकी इमेज अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही। नो वन बिलीव्स दैट द यूएस राइट नाउ इज डूइंग एनीथिंग सब्सटेंशियल व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड। जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हुआ है उसको लेकर अब ये स्थिति बहुत साफ हो गई। दूसरे साइड है पुतिन, जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ना ही सिर्फ यूएस पर एक चेक रखा जाए लेकिन चाइना को भी चेक में रखा जाए। अब वो इस समय ये कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ही इज आइसोलेटेड, लेट्स एक्सेप्ट दिस। देखिए वेस्ट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक पूरा अग्रेशन इस समय
रशिया के खिलाफ लॉन्च कर दें, लेकिन रियलिटी तो ये है दैट पुतिन टुडे इज आइसोलेटेड. ही नीड्स इंडिया मोर देन anyone else today. So is this how India can play a larger role in this entire crisis? Let's see where the story goes, and I want to thank you for your time, for watching this video. Do share your feedback, your thoughts, your suggestions on this. What more would you want to watch? And as I said, we here at the news that you don't get promise to you कि हम वो तमाम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे जिनकी आपको जरूरत है. But we will not induce any panic or anxiety attack. Do share this entire explainer and this video with your friends, your families, your colleagues, and do like, subscribe to my channel if you like our work. Thank you.